प्यारे बच्चों, मैं पुरुषोत्तम कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुंदन, डिस्ट्रिक्ट सोलन, आपका +2 क्लास में स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका जो 4th यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, तो उसमें जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन मिक्सचर। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर reacting to produce products. So as the reaction proceeds in forward direction, the concentration of reactants goes on decreasing and simultaneously the concentration of products goes on increasing. It is observed that as the concentration of reactant goes on decreasing, the rate of reaction also goes on decreasing. If we want to express the rate of reaction in terms of concentrations of reactants, then we can write the rate of reaction as the instantaneous rate of reaction minus dr over dt, where dr is the infinitesimal small decrease in the concentrations of reactant R. So it means the decrease in concentration of reactant, so its value is negative. So we put the sign negative before the rate expression, so that negative multiply negative, so that the rate of reaction becomes positive. So rate of reaction is always positive. So negative sign indicates just only the decrease in concentration of reactants. Now the units of rate of reaction. As the rate of reaction is the change in concentration of reactant per unit time, so the reactant within square bracket indicate the concentration of reactant which changed per unit time, that is in mole per liter per second. So the units of rate of reaction becomes mole per liter as the change in concentration. Per second means per unit time. So if the reactants are in gaseous phase, then we can write the rate of reaction. So the units of rate of reaction becomes atmosphere per second, where atmosphere is the partial pressure of the reactant R in its gaseous state. So now as the concentration of reactant goes on decreasing, the rate of reaction also goes on decreasing. So we can say rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants. फैक्ट आता है आपका टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. So it is observed that as the temperature of reaction mixture increases, rate of reaction also increases. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं रिएक्शन मिक्सचर्स में, जो रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से द फ्रैक्शन ऑफ द reacting species having threshold energy also increases. तो उससे क्या होगा? number of effective collisions also increases. तो if number of effective collision increases, the number of reacting species converting into products also increases. It means with increase in temperature the rate of reaction also increases. Next आता है आपका catalyst. अब जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट, तो रिएक्टेंट स्पीसीज जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले उनको एक एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ता है. दैट एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. तो जब आप कैटलिस्ट रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर देते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है? वो एनर्जी बैरियर जो है उसको लोअर कर देता है, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन है उसे लोअर कर देता है.
तो इस वजह से रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेट लॉ। रेट लॉ मीन्स व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड in terms of concentrations of reactants. For example, हमारे पास एक general reaction है in which A mole of reactant A react with B mole of reactant B to produce C mole of product C plus D mole of product D. So where number of moles of reactants and products here are called stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation. Let this is balanced chemical equation of a reaction. So, according to rate law, we can express the rate of reaction, or we can say it as minus dr over dt as the instantaneous rate of reaction in terms of concentrations of reactants. So, rate of reaction is directly proportional to product of concentrations of reactants, in which each concentration term raised to some power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation. For example, here the x is the power of concentration term of reactant A. It may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of reactant A in a balanced chemical equation. Similarly, y is the power of concentration term B. It also may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of reactant B in a balanced chemical equation. So, in other words, we can say the rate law or rate expression, it cannot be determined simply on looking at the balanced chemical equation. In other words, it is not a theoretical concept, but it is experimental concept. यानी कि in other words, we can say the rate law or rate expression can be determined only on the basis of experimental data. So it is an experimental concept and not a theoretical concept. So we can write here rate as rate of reaction in terms of concentrations of reactants as rate of reaction is equal to K multiplied by product of concentrations of reactants, in which each concentration term raised to some power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation. So here K is called constant of proportionality, and here it is known as rate constant. So now we can define rate constant when the concentration of each reactant is taken unity, यानी कि अगर हम प्रत्येक reactant की concentration 1 mole per liter लेते हैं तो rate of reaction becomes rate constant K multiplied by concentration of reactant A taken as 1 mole per liter raised to power x multiplied by concentration of reactant B taken as 1 mole per liter raised to power y. So we get rate of reaction is equal to rate constant K. So here we can define the rate constant K. So it is the rate of reaction when concentration of each reactant is taken as unity. So it is also called specific rate of reaction, or its value is independent of the concentrations of reactants, and as the temperature of reaction mixture increases, the value of rate constant K also increases. In other words, we can say the value of rate constant K is directly proportional to temperature of the reaction mixture. Next आता है हमारा order of reaction. To consider a general reaction in which A mole of reactant A react with B mole of reactant B to produce C mole of product C and D mole of product D.
तो experimentally rate expression is determined is here that rate of reaction is equal to rate constant K multiplied by product of concentrations of reactants in which each concentration term raised to some power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. So here the order of reaction यानी overall order of reaction is the sum of the exponents of the concentration terms of reactants in rate expression or rate equation. So we can say overall order of reaction N is equal to x plus y. So x plus y is the sum of powers or sum of exponents of the concentration terms of the reactants in rate expression or rate equation. Now let us take some examples of order of reactions, reaction of zero order. For example, यहाँ पे अमोनिया जो है 2 मोल ऑफ अमोनिया डिकम्पोज टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन. तो प्लेटिनम यहाँ कैटलिस्ट है और 1130 केल्विन यहाँ टेम्परेचर है. तो इसमें जो रेट एक्सप्रेशन जो डिटरमाइंड की गई एक्सपेरिमेंटली दैट इज फाउंड एज रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अमोनिया रेज टू पावर 0. तो इस रेट एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट 0 है और सम ऑफ ऑर्डर जो है दैट इज n इज इक्वल टू 0. तो जनरली यहाँ पे जो रेट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अमोनिया. और जनरली जीरो ऑर्डर के जो रिएक्शन हैं वो होते हैं जो एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं या जो रिएक्शन जो है ऑन द मेटल सरफेसिस जो पर टेक्स प्लेस होते हैं तो वो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इनटू नाइट्रोजन एंड वाटर. तो इसकी जो रेट एक्सप्रेशन है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड की गई एज रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट रेज टू पावर 1. तो यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम नाइट्राइट रिएक्टेंट इज 1. सो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स तो n 1 नहीं आ गया, तो इट इज द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. नाउ रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन. तो इसकी रेट एक्सप्रेशन जो है वो डिटरमाइंड की गई एक्सपेरिमेंटली. इट इज फाउंड रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट रेज टू पावर 2. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है कंसंट्रेशन टर्म का रेट एक्सप्रेशन में वो 2 है और सम ऑफ एक्सपोनेंट्स भी क्या आ जाएगी n इज इक्वल टू 2. सो इट इज एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर. अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो इसकी रेट एक्सप्रेशन जब डिटरमाइंड की गई एक्सपेरिमेंटली तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड रेज टू पावर 2 multiplied by concentration of oxygen reactant raised to power 1. Here the sum of exponents that is exponent यानी कि order with respect to nitric oxide is 2 and exponent 1 that is the order with respect to oxygen is 1. So overall order gives the sum of the exponents of the concentration terms in rate expression. तो आ गया n is equal to 2 plus 1 is equal to 3. नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर, यानी कि जैसे आप क्लोरोफॉर्म का 1 मोल लेते हैं रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ HCl. तो इसकी जो रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड की गई उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन
रेज टू पावर हाफ। तो अब इन दिस केस one is order with respect to chloroform reactant and half is order with respect to chlorine reactant. तो overall order is the sum of the exponents of these concentration terms. तो कितना आया 1 plus half is equal to 3/2. So this is the example of fractional order of reaction. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। सो सपोज ए जनरल रिएक्शन है जिसमें ए मोल ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ रिएक्टेंट बी टू प्रोड्यूस सी मोल ऑफ सी प्रोडक्ट प्लस डी मोल ऑफ डी प्रोडक्ट। तो इसकी रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड की गई एज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेज टू पावर X मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B रेज टू पावर Y। अब जैसे कि आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो इसके यूनिट बन जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की यूनिट है मोल पर लीटर raised to power X similarly multiplied by concentration of reactant B के हैं मोल पर लीटर raised to power Y। So now on simplification we get so the units of rate as mole per liter per second is equal to rate constant K multiplied by mole per liter concentration of reactants raised to power x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे आ गया सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स x प्लस वाई। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट x प्लस वाई इज कॉल्ड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हम जो है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट K के ड्राइव कर सकते हैं। सो एज यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू अपॉन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें रीअरेंज करें तो हमारे पास यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के आ जाते हैं मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, वेयर n इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अब हम डिफरेंट ऑर्डर्स के रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n as order of the reaction. So for example units of rate constant for zero order reaction। अब यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू क्या है 0 है। अगर हम इक्वेशन 1 में n की वैल्यू की जगह 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट k हैं वो ड्राइव हो जाते हैं एज इज इक्वल टू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे जीरो ऑर्डर में 0 और पर सेकंड। तो इस तरह से हमारे यूनिट्स बन जाते हैं जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट K के मोल पर लीटर पर सेकंड। सिमिलरली यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो n की वैल्यू 1 है। अगर हम इक्वेशन 1 में n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमारे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1 पर सेकेंड इज इक्वल टू, तो ये आ जाता है पर सेकेंड। सिमिलरली यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू क्या है 2। So by putting the value of n in equation 1 we get the units of rate constant K as is equal to mole per liter raised to power 1 minus n की जगह हम क्या डाल देंगे अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 वैल्यू डाल देंगे पर सेकेंड। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर सेकेंड ऑर्डर एज पर मोल लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो जो ये जो टर्म मॉलिक्यूलरिटी है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, यानी एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, एक ही स्टेप में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो इन एलिमेंट्री रिएक्शंस को हम सिंपल रिएक्शंस भी बोलते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी रिएक्टेंट के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, उनके नंबर that taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously, वो एक साथ कोलाइड करें इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। So on the basis of molecularity of reactions, elementary reactions are further classified as number 1 unimolecular elementary reactions, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है रिएक्टेंट स्पीसीज का जो डिकम्पोज हो जाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अमोनियम नाइट्राइट है, सो इट डिकम्पोजिशन पर ऑन डिकम्पोजिशन पर इट कन्वर्टेड इनटू 1 molecule ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 molecule ऑफ वाटर। सेकंड आते हैं बाई मॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो बाई मॉलिकुलर में क्या होते हैं कि दो जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, जैसे डायग्रामेटिकली शो किए गए हैं, वो अप्रोच करेंगे विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी और इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के साइमल्टेनियसली कोलाइड with each other and converted into product as hydrogen and iodine. So such type of reactions are called bimolecular elementary reaction. तीसरे आते हैं आपके ट्राई मॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब इसमें 3 रिएक्टिंग स्पीसीज जो हैं वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, जैसे डायग्रामेटिकली शो किया गया है, और वो इफेक्टिव कोलिजन्स के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड के कोलाइड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज द सम ऑफ stoichiometric coefficient of the reactants in a balanced chemical equation। अब जैसे कि यहाँ रिएक्शन दिया हुआ आपका ट्राई मॉलिकुलर एलिमेंट्री में, तो यहाँ पे stoichiometric coefficient विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड है आपका 2 एंड stoichiometric coefficient विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है उसका है 1। तो इन stoichiometric coefficient का अगर हम सम करेंगे 2 + 1 तो इट गिव्स द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे 2 + 1 कितना आ गया 3। सो इट इज ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, यानी कि ये एक स्टेप में प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं बल्कि 2 या 2 से अधिक स्टेप के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि कम्प्लेक्स रिएक्शंस आर द रिएक्शंस विच आर कंप्राइज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अब एक कम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड कैटालिस्ट इन अल्कलीन मीडियम प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जब एक्सपेरिमेंटली इसकी रेट एक्सप्रेशन डिटरमाइन की गई तो इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड कैटालिस्ट रेज टू पावर 1। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन आता है हमारा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट एक्सप्रेशन। तो ये आता है n इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम रेट एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट सेम एज द stoichiometric coefficient of hydrogen peroxide in a balanced chemical equation. So it is the example of complex reaction. अब जब रिएक्शन मिक्सचर्स को एनालाइज किया गया एक्सपेरिमेंटली, सो इट इज फाउंड कि दैट दिस रिएक्शन इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑफ ए कम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब इस मैकेनिज्म में पहला जो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है
वो है कि 1 mole ऑफ हाइड्रोजन peroxide react with the 1 mole of iodide catalyst to produce 1 mole of water and 1 mole of hypoiodite इंटरमीडिएट। तो पहला स्टेप आपका स्लो है और फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो पहला स्टेप है, और ये स्लो होने की वजह से इट इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसी के ऊपर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। सेकंड स्टेप जो है उसमें जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ वो कंज्यूम हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 मोल react with 1 mole of hypoiodite intermediate to produce 1 mole of water and 1 mole of iodide anion as a catalyst plus 1 mole of oxygen। तो अगर आप दोनों स्टेप को देखेंगे तो पहले स्टेप में इंटरमीडिएट जो है वो प्रोड्यूस होता है और कैटलिस्ट आयोडाइड जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन में। सेकंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कंज्यूम हो जाता है, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करता है इंटरमीडिएट के साथ, और यहाँ पे वाटर, और यहाँ पर देखो सेकंड स्टेप में कैटलिस्ट क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, आयोडाइड रीजनरेट हो जाता है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। तो अगर हम अब इन दोनों जब एलिमेंट्री स्टेप को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल कम्प्लेक्स रिएक्शन, that is 2 mole of hydrogen peroxide is equal to produce 2 mole of water and 1 mole of oxygen। तो अब अगर हम दोनों एलिमेंट्री स्टेप को देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है कम्प्लेक्स रिएक्शन का दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल कम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आप देखिए जो स्लोएस्ट स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन की, जैसे आप जानते हैं इट इज द सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 1 ही मोल आयोडाइड, तो यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की सम कितनी हुई 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल। तो इस जो स्लोएस्ट स्टेप है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन का इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2। अगर आप रेट एक्सप्रेशन देखें तो दैट इज सेम एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट एक्सप्रेशन, जैसे 1 इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी एलिमेंट्री रिएक्शन में 1 ही है। सो 1 इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड एनाइन इन रेट एक्सप्रेशन। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन में देखें जो स्लोएस्ट स्टेप है तो उसमें भी आयोडाइड कैटाइन का स्टोइकोमेट्री जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी होती है स्लोएस्ट स्टेप की दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल कम्प्लेक्स रिएक्शन। अब जब अगर आप ओवरऑल कम्प्लेक्स रिएक्शन में देखें तो ना तो आपका इंटरमीडिएट अपनी अपीयरेंस दे रहा है और ना ही कैटलिस्ट अपनी अपीयरेंस दे रहा है। So we can conclude from the above discussion that order of reaction is an experimental quantity, जबकि molecularity is a theoretical concept. So order of reaction can be 0, an integer or a fraction or even negative, but molecularity cannot be 0 or a fraction. Molecularity is always an integer value। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कम्प्लेक्स रिएक्शंस, वेयर एज मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। और थर्ड आता है आपका फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप एंड generally the molecularity of the slowest step is the same as the order of the overall reaction. So thank you. धन्यवाद।